God has given us freedom as well as He has given us, He has placed boundaries within us. प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दिया है, उसके साथ पाबंदियां भी लगाई है प्रभु ने। Yeah. So first of all, wonderful. It's a wonderful thing that God has given us freedom. बहुत ही सुंदर बात है कि परमेश्वर ने हमें आजादी दी है। That freedom is so much mentioned in the Word of God about first of all the liberty in the Holy Spirit. उस आजादी के बारे में कई बार कहा गया है और अधिकतम रूप से हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा में जो आजादी है उसके बारे में। So the Word of God keeps on speaking about standing fast in that liberty with where Christ has set us free. वचन में ऐसे भी कहा गया है कि जो आजादी प्रभु ने हमें दी है उसमें हम स्थिर रहे। Yeah, I always nowadays think of those two verses which Abu shared in Galatians 5:13 and 1 Peter 2:16. We'll read 1 Peter 2:16 right now. 1 Peter 2:16. हम जो है पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। It says, what a powerful verse. It says in 2:16, act as free men and do not use your freedom as a covering for evil, but use it as bond slaves of God. पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका 16 वचन, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। I've been meditating and trying to practice this in my life that, wherever I am, I must see that I'm not bound by anything. मैंने इस वचन पर मनन किया है और मैंने अपने जीवन में ये लागू करने के लिए प्रयास किया है कि मुझे किसी भी बंधन में नहीं आना चाहिए। So for instance, we are just relaxing, then you feel, is it right for me to relax? I should do something. All those things try to make us, not because of something that I must be doing something. I should even just relaxing for a little while. You can feel that no, that is not the right thing. So these are all the things that that has accumulated in our life, but must be free at the same time. Use it in the right way as bond slaves of God. जैसे अगर मैं कभी आराम कर रहा हूँ तो मेरे मन में ये सोच आती है कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ, क्या मुझे कुछ करना नहीं चाहिए। तो ऐसे कई बातें मेरे मन में आती हैं। तो हमें जो आज़ादी मिली है ये हमें ठीक तरह से उपयोग करना है। ये नहीं कि हमें आराम नहीं करना है, लेकिन आराम करते हुए भी हमें उसे ठीक तरह से उपयोग करना चाहिए। So we need to really, each one of us really need to be free, but see that our freedom does not cause us to act in the flesh. That means the flesh always brings forth some sin. हमें आज़ादी से हमें कार्य करना चाहिए, लेकिन जो आज़ादी है उसको हम अपने शरीर के अभिलाषों उनके लिए मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब भी शरीर बीच में आ जाता है तो पाप में हमें खींचता है। And then what we heard about the boundaries that God has placed over us. और उसके बाद जो सीमाएं प्रभु ने हमें दी है। We read in 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. उसके बारे में हम दूसरा कुरिन्थी 9वां अध्याय में देखेंगे। The Apostle Paul was very conscious of his boundaries. जो प्रेरित पौलुस थे, वो अपने जो सीमाएं हैं उनके बारे में वो बहुत ही जागरूक थे। He didn't want to go and preach the gospel where others have preached. वो ये नहीं करना चाहते थे कि जहां किसी और ने सुसमाचार का प्रचार किया हो वहां वो जाके
प्रचार करे, unless the Spirit of the Lord led him there. जब तक प्रभु की जो आत्मा है उन्हें उधर ना ले जाएं। And verse 13 onwards, it says, 2 Corinthians chapter 10, verse 13 onwards. दूसरा कुरिन्थी 10वां अध्याय और 13वां वचन। But we will not boast beyond our measure, that means beyond our boundary, but within the measure of the sphere which God apportioned to us as a measure to reach even as far as you. For we are not overextending ourselves as if we did not reach to you, for we were the first to come even to you as far as as far as you in the gospel of Christ, not boasting beyond our measure, that is in other men's labors, but with the hope that as your faith grows, we shall be within our sphere, enlarged even more by you, so as to preach the gospel even to the regions beyond you, and not to boast in that which has been accomplished in the sphere of another. दूसरा कुरिन्थी 10 का 13, 14, 15 और 16। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक ना पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच सके। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे, ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएंगे, और यह नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें। So I was encouraged by what Brother Abu said about there are so many things that we can do in our lifetime with the things that are there in our own boundary. मुझे इस बात से बहुत प्रोत्साहन मिला जो ब्रदर अबू ने बांटा कि जो सीमाएं प्रभु ने हमें दी है, उसी के अंदर हम बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पूरा कर सकते हैं और दूसरों को आशीष बन सकते हैं। See, even in our church, there are so much of need. There are so many young people. There are children. There are people who have not come to the Lord, and our minds, instead of that, our minds can be set on so many other things outside. जैसे हमारे खुद के कलीसिया में ही हम देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, और जैसे बच्चे हो या जवान हो, और इसके बावजूद हम इन चीज़ों पर ध्यान रखने के बावजूद हम दूर दूर की बातों पर मन लगाए रख सकते हैं। Bible says the fool sets his eyes on the ends of the earth. वचन में ऐसे कहा गया है कि जो मूर्ख है वो दूर दूर तक अपनी आंखें लगाए रखता है। Then just two more things which we heard today about that Uzzah, how which was not his part, he tried to do. That is something where really we have to be careful. और जैसे उज़ा के बारे में भी हमने सुना, जो उसके सीमा के अंदर की बात नहीं थी, उस पर उसने हाथ लगाने का प्रयास किया और वो उसके लिए हानिकारक बन गया। King Saul also tried to do that, and it went very badly with him. और जो राजा शाऊल है, उन्होंने भी ऐसा प्रयत्न किया और इसके कारण उनके साथ बहुत बुरा हुआ। The other thing what we heard was the inquisitive nature we must really put to death in our life. और दूसरी बात, हमें जो दूसरों के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है हमारी स्वभाव में, उस पर हमें काबू रखना चाहिए। May God help us to be sensitive, and may the Holy Spirit, as the Holy Spirit prompts us, may we be completely done away with all this inquisitiveness in our life. जैसे पवित्र आत्मा हमें दिखाता है, वैसे हमें इस जिज्ञासा से दूर रहना चाहिए। Amen. We heard a
very encouraging message on staying within the boundaries God has placed around us. और हमने अभी अद्भुत वचन सुना कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए सीमा ठहराई है उस सीमा के हम अंदर रहकर अपने कामों को करें। Something which challenged me was, we have a lifetime of work to be done within the boundaries, so we don't need to be worried about what is outside our boundaries at all. तो और एक अद्भुत बात जो आज हमने सुनी कि परमेश्वर ने एक ऐसा कार्य हमारे लिए रखा है जिससे हम अपनी सीमा में रहकर अपने जीवन भर में उसे पूरा कर सकते हैं। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारी सीमा के बाहर कौन सी बातें हैं जो हम नहीं कर रहे। There's a verse in Acts 17:26 which says that from one man he made all nations, that they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. और हम प्रेरितों के कार्य उसके 17 अध्याय 26वें वचन में पढ़ते हैं, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। So God has put geographical and also time boundaries for each person. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो मनुष्य की सीमा को जो भूमि पर है उसे भी बांधा है और उस समय की भी एक सीमा रखी है। So we have to live within those boundaries for the whole life. So that means we have sufficient to do. Everything God wants us to do can be done within those boundaries. और परमेश्वर ने हमारे लिए जो ये सीमा ठहराई है, समय की सीमा और हमारे निवास की जो सीमा, उन सीमा के अंदर रहकर भी हम परमेश्वर के दिए हुए कई सारे कार्यों को कर सकते हैं। In James 2:12 it says, speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom. Brother, which was brother? That is James 2:12. और हम याकूब अध्याय 2 के वचन 12 में पढ़ते हैं, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। It says about we are judged by a law that gives freedom. और यहाँ पर लिखा है कि जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। So the law was intended to give us freedom. और न्याय इसीलिए किया गया कि हमें स्वतंत्रता दी जाए। So freedom within the boundaries, the Lord, the law sets around us. और जो व्यवस्था हमारे चारों ओर बांधी गई है, जिसके द्वारा हम एक सीमा में रहते हैं और उसके द्वारा हमें एक आजादी मिलती है। So it is tremendous words. We have freedom only within the boundaries the law sets around us. और हमें ये बहुत ही अद्भुत वचन है और बात है हमारे लिए जानना कि परमेश्वर ने व्यवस्था दी है जिसके द्वारा वो हमारे लिए एक सीमा रखते हैं। उस सीमा में हम बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र हैं। Moment you cross that, your the freedom is gone. You can hurt yourself as Usa did, and many other tension and things comes into your life. लेकिन यदि आप परमेश्वर की ठहराई हुई सीमा को लांघ कर बाहर निकलेंगे, अपनी सीमा तोड़कर उसका उल्लंघन करेंगे, जैसे उज्जा के साथ हुआ, वैसे हम भी अपने आप को नुकसान पहुंचा देंगे और कई सारी और अपने आप को चिंता और परेशानियों में डालेंगे। 1 Timothy 6:6 says, "Godliness with contentment is a great gain." पहला तिमोथी 6:6 वचन ऐसे कहता है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। So we have to be happy and content with what God has given us, with the boundaries God sets around us. तो परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है और जो हमारे लिए सीमा ठहराकर जिस सीमा में हम रहते हैं उसके साथ हमें संतुष्ट रहना है। Sometimes I felt in my offices, earlier many years back, I used to feel that the job which I am not doing is not the type of job I must be doing. और कुछ साल पहले जहाँ मैं काम करता हूँ उस क्षेत्र में मैं अपने ऑफिस में अपने विषय में सोच रहा था कि कुछ काम जो मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे काम मुझे करना चाहिए। So I thought myself to be much higher than the kind of job which was given to me. और मैं अपने विषय में ऐसे सोच रहा था कि जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे इससे और ऊंचे पद का काम मिलना चाहिए। So I became discontent and it really affected my life. और मैं तब वहां पर अपने जीवन और अपने काम को लेकर असंतुष्ट हो गया और इसने मेरे जीवन पर बहुत ही बुरा असर डाला है। I wasted many years living in that discontentment and stress and lack of freedom and lack of peace.
और मैंने कई वर्ष मेरे जीवन के इसी तरह इस परिस्थिति में रहकर बिताया, जहाँ पर मैं अपने काम से असंतुष्ट था और मैं बहुत ही तनाव और परेशानियों के बीच में रहता था। So when I came out of that, I felt what a man I was. I wasted my time. और जब मैं उस परिस्थिति से बाहर निकल कर आया, तब मैंने पलट कर देखा कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैंने यह समय व्यर्थ गंवा दिया। So God should open our eyes to see that what God has placed for us is the best. तो परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारी आंखों को खोले, हम देख पाए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ठहराया है। So let us learn to be content with whatever God has given us. तो आइए परमेश्वर ने जो हमें दिया है और हमारे लिए ठहराया है, उसके साथ में हम संतुष्ट रहें। It's a tremendous encouragement to always think that God is our Father. और सबसे बड़ी उत्साहित की बात, प्रोत्साहन की बात हमारे लिए यह है, यह बात को सोचना कि परमेश्वर हमारा पिता है। Whatever role God has given us on our life on this earth is the best. It is the best considering who we are. और हम क्या है बजाय इसके कि परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया और जो कुछ हम करते हैं, यह हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे उत्तम सर्वोत्तम बात है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। When we have confidence in such a father, we will never be wanting to be someone else. और जब हमें हमारे स्वर्गीय पिता में ऐसा हिया होगा, भरोसा होगा, हम कुछ और बनना नहीं चाहेंगे। I don't ever want to come out of the boundaries God has placed around me. और मैं कभी नहीं चाहता कि वह सीमा जो परमेश्वर मेरे चारों ओर ठहराई, उस सीमा के मैं बाहर आ जाऊं। Godliness with contentment is a great gain. संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। Same along the lines of the boundaries that we have. I was reading yesterday in Proverbs 18, verse 21 says, "The tongue has the power of life and death." तो मैं उसी विषय में बांटना चाहता हूँ, जैसे अभी भाई लोग बांट रहे थे कि अपनी सीमा में रहने के विषय में, उसमें मैं नीति वचन 18 से, ब्रदर विच वर्स? Proverbs 18, verse 12, 18 verse 21. नीति वचन के 18 के 21वें वचन से मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। Says, "The tongue has the power of life and death." कि हमारी जो जीभ है उसमें जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। Also Matthew 12, verse 36, "But I say to you, every idle word man may speak, they will give account of it in the day of judgment." और एक और वचन है मत्ती के 12वें अध्याय के 36वें वचन से कि हर एक खाली वचन जो 1 मिनट है ब्रदर, 12 के 36 में लिखा है कि और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। So we have to use the words that we use every day. We have to praise God in worship, in speech, praise God's name, and praise God's word. तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी वचन हम, वाक्य और शब्द हम दिन भर बोलते हैं, उन हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और परमेश्वर से उन शब्दों को मांगना चाहिए। I use the book of Psalms every day to praise God, to find words to praise God, because sometimes I feel that my words are not good enough. So I read the book of Psalms. तो जब परमेश्वर की स्तुति करनी होती है तो कई बार मैं भजन संहिता की जो पुस्तक है उसमें से वचन ढूंढता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो शब्द हैं वो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए पूरे नहीं हैं। Beautiful words from what David and Solomon wrote, and that's what I use every day. I read this Psalm 3 to 4 times a day. तो इसमें बहुत ही सुंदर वचन है जो राजा दाऊद ने इस्तेमाल किए थे, और ये जो पुस्तक है मैं बहुत 3-4 बार पढ़ता हूँ एक दिन में परमेश्वर की स्तुति के लिए। And these are the garments I wear, the garments of hope and love and praise and joy in God's name. और ये ऐसे वस्त्र हैं जो मैं पहनता हूँ, वो परमेश्वर की आशा के वस्त्र, और जिसमें परमेश्वर से प्रोत्साहन मुझे मिलता है और उसका प्यार मुझे मिलता है। Thank you.
So I would like to thank God for what God has been doing in our life. So just wanted to give a brief testimony for what God has been doing. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, और मैं कुछ छोटे शब्दों में आपसे परमेश्वर की कार्य की वो गवाही बांटना चाहता हूँ। Ever since I came down and the house that we were living in, it was very difficult to stay in that house because of some issues, and the leakage issues were there in that house. और जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हमें तकलीफ और कठिनाई हो रही है, क्योंकि उस घर में पानी लीकेज की समस्या का हम सामना कर रहे हैं। And it's been almost 2 months, 2.5 months. I was roaming around to look for the house in the midst of pandemic. और इस महामारी के बीच में मैं पिछले 2 महीने से एक घर की तलाश कर रहा था, मैं यहाँ वहाँ खोज रहा था। And I want to thank God that God brought us a house where now we have already moved in, and it's only by grace of God that we got this house where we are now. और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने वह सही स्थान हम और वह घर हमारे लिए जो था वो परमेश्वर ने हमें दिया है। I had gone to book this, to finalize this house, and when I went, and because of some reason I could not do it at that moment. और कुछ कारण थे जिसके कारण मैं उस समय पर उस घर को तय नहीं कर पाया था, परंतु कुछ समय के बाद जाकर मैंने उस घर को तय किया। And in midst of that, someone had already took it, and then even the person who took this house, finally they did not come in, but their deal was finalized, but eventually they cancelled that deal. और मैं जाकर पहले कि उस घर को बुक कर लूं और तय कर लूं, उसके पहले कि किसी और व्यक्ति ने जाकर उस घर को बुक कर लिया था और उनका जो सौदा था वह पूरी तरह से पक्का हो चुका था, लेकिन वह उस घर को घर में रहने नहीं गए थे। Yeah, so I want to thank God that we got this house, and even entire church who were praying for us individually. I want to thank God for every one of you who kept us in prayers, and finally I thank God for what God has done. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य करके वो घर हमें दिया रहने के लिए। और मैं कलीसिया का भी धन्यवाद करता हूँ, अपने से हर एक व्यक्ति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे इस विषय के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना की। And this week I was writing one exam, which was very important exam of my as far as my career is concerned. That was for captain's license, and thank God that exam went well. The paper was very easy, and only by grace of God I could write all the answers. और पिछले सप्ताह मेरा जो परीक्षा चल रहा था कैप्टन की निर्देशक की परीक्षा के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं के अनुग्रह के कारण, दया के कारण मैं अच्छी तरह अपनी पढ़ाई करके परीक्षा लिख पाया। Thank you so much for your prayers. आप सभी की प्रार्थना के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। From John 5th chapter, verse 1 to 9. No need to read everything. We know the story. सो यूहन्ना के 5वें अध्याय के पहले और 9वें वचन से मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। हम लोग जानते हैं इस कहानी के विषय में। Something which really spoke to my heart, to be submissive to the authorities which God has given me. तो जो बात मेरे हृदय को बहुत ज्यादा छू गई वह यह बात है कि उन जो भी अथॉरिटी परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है उनके अधीन रहने के विषय में। There in verse 3, in there lay a multitude of those who were sick, blind, lame and withered, waiting for the moving of the waters. तो यहाँ पर तीसरा वचन जो यूहन्ना के 5वें अध्याय के तीसरे वचन में लिखा है कि वहां पे बहुत से बीमार, अंधे, लगड़े और सूखे अंग वाले थे और वे पानी के हिलने की आशा में पड़े थे। But even though there were a multitude of sick people, Jesus went there and he saw only one person who is there had been there ill for 38 years. यहाँ तक कि यहाँ पर इतने सारे बीमार लोग थे, परंतु जो यीशु मसीह है वे एक ही मनुष्य के पास गए जो 38 सिस्टर 38 years. तो जो मनुष्य वहां पर 38 सालों से बीमार पड़े थे उनके पास गए यीशु मसीह। And Jesus asked him, "Do you wish to get well?" तभी यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या तुम आशा रखते हो ठीक होने की? And he said yes, and Jesus healed him.
तब उस मनुष्य ने हाँ कहा और तब यीशु मसीह ने उनको चंगाई दी। But I was thinking, he didn't heal anybody else. और मैं सोच रही थी कि यीशु मसीह ने किसी और को चंगाई नहीं दी। So that I was picturing in my mind that scene, what is happening there. और मैं उस दृश्य की कल्पना मेरे मन में कर रही थी कि जो वहां पर हुआ होगा। Such a person is healed by Jesus, and all other sick people will be crying out to Jesus to heal them. एक ही व्यक्ति था वहां पर जो चंगाई जिसने पाई, और वहां पर इतने सारे लोग थे जो यह आशा कर रहे होंगे कि उनको भी चंगाई मिले। They all will be crying out to Jesus. और वे सब रो रहे होंगे यीशु मसीह के पास आकर। But Jesus was ignoring them, and he went away from there. और यीशु मसीह उन सब लोगों को अनदेखा कर रहे थे और वे वहां से फिर चले गए। Why? Because Father told him to heal only that one person. क्यों? क्योंकि उनके पिता ने उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति को चंगाई देने के विषय में बोला था। What Father did not allowed him to heal anybody else there. और तब उनको उनके पिता ने किसी और को चंगाई देने की अनुमति ही नहीं दी थी। So I was thinking, Jesus had a compassionate heart. और मैं सोच रही थी कि यीशु मसीह का जो हृदय था वह कितना दयालु हृदय था। Still, he has the power to heal all of them. और उसके पास वह सामर्थ्य थी कि वह उन सभी लोगों को चंगाई दे सकता था। Still, he did not cross his boundary. तब भी उसने अपनी जो सीमा थी उसको नहीं लांघा। He heard his father's voice to do in that situation what to do. He done only that. और उसने अपने पिता की आवाज को सुना और उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए वह सुनकर उसने वही काम किया। That really spoke to my heart, to be submissive to in my own life to others. और यह बात मेरे हृदय से बहुत बात किया कि मेरे जीवन में मैं उन लोगों के अधीन हो जाऊं, उन अपने अथॉरिटी के अधीन रहने के विषय में। So I asked Lord, help me, Lord, to be submissive like this, the way Jesus submitted to his father. तो मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर आप मुझे मदद करें कि मैं भी एक अधीन बनूं जिस प्रकार से यीशु मसीह अपने पिता के लिए अधीन थे। So God, each time when I speak or do something where I am crossing my boundary, Holy Spirit is showing me where I am crossing my boundary and helping me to repent about such things. और जब भी मैं कुछ बात कर रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ तब भी परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं कब अपनी जो सीमा है उसके बाहर जा रही हूँ, और परमेश्वर मेरी मदद कर रहे हैं।